بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ متروں، کشن نیزا کو چلے سے گزرنے کے بعد سے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور نیزا نے اپنی ماں کے علاوہ اجرت پر بھی دودھ پیا تو پھانسی گھاٹ میں دو عورتیں مختلف ٹائم میں نیزا کو دودھ پلانے آتی تھیں۔ نیزا انہیں دیکھتے ہی کلکاریاں مارتا کشن دن بھر اسے ہنی گھی کھلاتا رہتا تھا۔ جلد نیزا بہت اچھا بولنے لگ گیا، اس کی زبان کی گرہ جلد کھل گئی اور وہ مناسب فکرے صاف الفاظ بولنے لگا۔ کشن اسے بیک وقت 3 زبانیں سکھا رہا تھا، اردو، انگلش اور عربی۔ اردو سرپنچ کی زبان ہے، انگلش قومی زبان ہے، عربی آسمانی زبان ہے۔ متروں، کشن تاش لے آیا اور نیزا کے حوالے کی۔ یہ 2 دن نیزا انہیں سارا دن پھرولتا رہتا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھتا تھا، تھک کر وہیں گر جاتا تو کشن اٹھا کر صوفے پر ڈال دیتا۔ ہاں، وہ کافی انرجیٹک تھا، خوب دوڑتا بھاگتا، لاتیں جان پکڑ گئی تھیں، مگر قد کافی چھوٹا تھا اور یوگل کے مطابق اس کا قد عمر کے لحاظ سے بڑھ نہیں رہا تھا اور دوسرے بھائیوں کے مطابق کشن اسے بہت دبوچے رکھتا تھا، آغوش میں اسے بھینچ کے رکھتا اور وقفے وقفے سے اسے باہوں میں دباتا رہتا تو جسم گروتھ نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی نہ بولتا۔ ہاں، شری متی جی کشن کو ڈانٹ کر کہتے، کشن اسے گود سے نکالا کرو، ہر وقت کستے رہتے ہو، یہ قد نہیں نکال پائے گا۔ تو کشن کو بھی سمجھ آتی، وہ صوفے پر ڈالے رکھتا، مگر پھر اسے بیٹا بہت پیارا تھا تو وہ نیزا کو باہوں میں لے کر بہت پیار کرتا۔ ہاں، یوگل لوگ لباس اتار کر بدن کو ہوا لگواتے اور اسے تھوڑا پیروں سے پکڑ کر کھینچا تانی کرتے کہ وہ لمبا ہو جائے۔ کشن تاش بھی رات کو گھر لے جاتا اور انہیں نیزا کے سامنے الٹ پلٹ کرتا رہتا۔ نیزا بھی اسی طرح کوشش کرتا رہتا کہ 3 دن بعد کشن پھانسی گھاٹ آیا اور وہاں کھلے ایریے میں سارے تاش اڑا دیے۔ اوکے نیزا، اب آپ نے سارے تاش اکٹھے کرنے ہیں، اکٹھے کر کے آفس میں لے آئیں۔ یوگل بے حد پریشان ہو گیا کہ پھانسی گھاٹ میل پر پھیلا تھا اور سورج بنسی کی سمادھی کے ساتھ ساری عمارت بنی تھی اور عملہ رہائش پذیر تھا۔ یہ سارا گورنمنٹ ایریا تھا، گارڈز بھی بہت تھے اور کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں تاش گئے تھے۔ یوگل گارڈز کو نگرانی کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ نیزا نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا اور کارڈز تلاش کر کے اکٹھے کرنے لگا۔ ہاں، کشن نے ایک بات کہی تھی، سارے کارڈ زمین پر ہیں، چھت اور سمادھی پر نہیں ہیں۔ اب جا بجا گملے اور ڈیکوریشن پیس ماڈل پڑے تھے، ان کے درمیان سے بھی نیزا کو کئی کارڈ ملے تھے۔ نیزا کی ماں اسے دودھ پلا کر چلی گئی، بریک پر اسے کشن نے کچھ کھلا دیا اور عصر ہو گئی۔ وہ ظہر کے بعد سے کوئی کارڈ تلاش نہ کر پایا تھا۔ عصر پھر مغرب ہو گئی۔ مغرب پڑھ کر وہ لوگ گھر جاتے تھے کہ کشن یوگل مسجد سے پلٹے نیزا تلاش میں لگا تھا۔ نیزا بیٹے کتنی دیر ہے؟ ڈیوٹی ورک کل سے سورج چڑھے سے سورج ڈلے تک ہوگا۔ نیزا کارڈ لے کر آیا، کشن نے لیے تو بولا ویری گڈ، یہ تو سارے پورے ہیں، اور نیزا نے غصے سے خود کو ایک چانٹا جڑ دیا کہ مورخ، زور سے مغرب کر دی، اتنی عقل نہیں تجھ میں، جا کر باپو جی کو دکھا تو آتا کہ پورے ہیں کیا۔ کشن نے ہنستے ہوئے اٹھا کر چومنا شروع کر دیا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ نیزا چن لیتا اور اندازہ کرتا کہ پورے ہیں تو جا کر کشن کو دکھاتا۔ کشن کہتا کم ہیں، یہ نہ بتاتا کہ کتنے کم ہیں۔ کشن اسے زیادہ سے زیادہ 3 بار بات سمجھا دیتا، ورنہ 2 بار سمجھا دیتا، پھر گائیڈ نہ کرتا تو اس سے نیزا اور زیادہ تھک کر چور ہو جاتا کہ آفس خاصا دور تھا، وہاں آنے جانے میں بھی ٹائم لگتا۔ نیزا کو ہلکا بخار ہو گیا اور وہ مختصر سا دودھ پی کر بستر پر پڑ گیا۔ کشن نے مساج کیا تو بخار اتر گیا، مگر پریشانی جوں کی توں رہی۔ کارڈ تو وہ سارے چن لیتا مگر پریشانی بڑھتی گئی۔ سمجھ نہیں آتی نیزا ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں پھر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ یوگل نے فکر سے بھائی سے کہا، سمجھ تو مجھے بھی نہیں لگ رہی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ کشن کو بھی فکر تھی اور وہ نیزا کو بہت پیار شفقت برت کے تسلی بھی کراتا ہے، ایک دم کسی کام کو سیکھ جائیں، آہستہ آہستہ یہ ہمیں کام آتا ہے۔ نیزا کو کچھ اطمینان ہوا، مگر صبح وہی حال کہ پہاڑ جیسا کام تھا۔ کشن زیادہ دور کارڈ اڑاتا نہیں تھا، مگر اب نیزا کو تو پتہ نہیں تھا کہ کارڈ نزدیک ہیں یا دور۔ 2 دن سے نیزا ٹھیک سو بھی نہیں رہا تھا، بیڈ کے اوپر بالکل فانوس تھا، اسے دیکھنے لگا رہتا اور ہر وقت گہرائی میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔
जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो। निज़ा थका होने के बावजूद कले के कमरों में फिरता रहता। किशन उसे सुलाकर काम में लग जाता मगर उसी पर मुतवज्जा रहता। उसे करवट बदलवा देता, ढांप देता। निज़ा की आंख खुलती तो थपक देता। कभी निज़ा दोबारा सो जाता, कभी जागता रहता। किशन काम के दौरान मुतवज्जा रहता कि एक रात निज़ा जागा तो नीचे उतर आया। उसे 1 माह हो गया था कार्ड क्लास को। वो कमरों में फिरता था, दरवाजे सारे खुले होते थे, जो बंद होते निज़ा उधर ना जाता। कि मित्रों, एक रूम में एक बेड की चादर पर अजीब सा डिज़ाइन था। निज़ा करीब जाकर गौर से देखने लगा और फिर दौड़ता गया और अपने रूम से कार्ड उठा लाया। और मित्रों, बेड के एक कोने से उसने कार्ड रखने शुरू किए। डिज़ाइन कार्ड की तर्ज का था। किशन भी हैरानी से उसका व्यू ले रहा था। जब सारे कार्ड्स पूरे आ गए तो निज़ा ने खूब देखभाल के कार्ड संभाल लिए और आकर सो गया। सुबह हुई, अभी नाश्ते में देर थी। निज़ा को रैतल ने दबोचा हुआ था कि निज़ा छुड़ा कर भागा तो रैतल पीछे लग गया। निज़ा ने जाकर उसी रूम में दम लिया तो रैतल ने उचक लिया और बहुत सारा प्यार कर डाला। बड़ी फुर्ती है बदन में। रैतल ने लबों से बदन को गुदगुदाया। रैतल बापू, आए हम आपको एक डिज़ाइन दिखाते हैं, निज़ा ने कहा तो रैतल मुतवज्जा हो गया। निज़ा ने चेक दिखाने शुरू किए। यहाँ तक रैतल बापू जी, ये कितने चेक हैं? रैतल ने गिने और बोला 12। और एक बेड के साइड पे कितने हैं? 12। 12 तो रैतल बाबू कितने हुए? 1 दर्जन। निज़ा, मतलब 1 दर्जन सराहने और 1 दर्जन पायंती, रैतल ने समझाया। तो कुल कितने चेक हुए? 2 दर्जन, मतलब 24। और रैतल बाबू 24 कितने हुए? निज़ा ने पूछा। रैतल सोचता रहा, फिर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, एक हाथ की 5 उंगलियां, दूसरे की 5, कुल 10 हो गई। इसी तरह पैरों की कुल 20 हो गई। 2 कान 22 हो गए, 2 आंखें 24। निज़ा ने मारे खुशी के जोर से चीख मारी और चाचे से लिपट गया। रैतल बाबू, बहुत शुक्रिया, हमारी बड़ी मुश्किल हल हो गई और हम दुहराए देते हैं, आप हमारे चाचा भी और रज़ाई बाप भी। तो रैतल ने हंसते हुए उसे सीने से कसा और बोला, हम पांचों तुम्हारे रज़ाई वालिद भी हैं। कि भाई जी ने कहा निज़ा कले की किसी बेटी से निकाह नहीं करेगा। दोनों हंसते वहाँ से आ गए। और दिन को मित्रों, निज़ा ने कार्ड इतनी जल्दी चुन लिए और इतने यकीन से किशन की टेबल पर रखते हुए बोला, गिन लें बापू जी, पूरे हैं। और किशन जानता था पूरे हैं। युगल ने आकर उठाकर गिने तो वो पूरे 24 थे। और निज़ा को भी गिनती का नहीं पता था। चंद दिन निज़ा इसी तरह मुसलसल जल्दी फारग हो जाता और बकिया टाइम सोया रहता था। किशन कोहनियों पर चेहरा टिकाए सोच में गुम था कि युगल ने पास आकर गाल की किस ली। क्या सोच रहे हैं? बीकानेर खोला बनाने का प्लान है क्या? वो दिलावेज मुस्कान से बोला तो किशन ने हंसते हुए बाहों में भर लिया। स्वीट आर्ट, खोला बनाने की नौबत नहीं आएगी। अंग्रेज़ों का इल्म पिया है मैंने, मैं हल निकालता हूँ मसले का। किशन ने हंसते हुए कहा। मित्रों, किशन कार्ड ऑफिस की दराज से खुद निकाल लेता था और घर जाकर बेडरूम के दराज में रख देता। वहाँ से निज़ा निकाल कर खेल में लग रहता। दूसरे दिन निज़ा को फिर मगरब हो गई मगर अभी 2 आँखों के कार्ड कम थे। स्वीट निज़ा, सूरज ढल गया, ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, आप क्या कर रहे हैं? किशन ने आवाज़ दी तो निज़ा रोहानसा होकर बाप के पास गया और बताया, 2 कार्ड नहीं मिल रहे। कार्ड पूरे हैं, मैंने 2 कम ही दिए थे। किशन ने कहकर निज़ा को उठा लिया तो निज़ा को दुख सदमे से बुखार ने आ लिया कि ये एक नई मुसीबत थी कि किशन कार्ड कम भी दे सकता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। कभी 4, कभी 5 कम होते और कभी सिर्फ 1 और कभी पूरे कार्ड होते। निज़ा का तो खाना पीना भी रह गया। छोटी सी जान के लिए ये एक बड़ा कष्ट नहीं है क्या? युगल भाई के हाथों को हाथों से मलता हुआ किसी कदर दुख से बोला, आपकी नज़र में इस मसले का कोई हल है क्या? किशन ने युगल से पूछा। नेवर, आपका माइंड तो कोई नहीं पढ़ सकता। युगल बेहद गमगीन हो गया था। देखते हैं, निज़ा ने पहले भी तो हल निकाल कर मुझे हैरान कर दिया, अब भी देखते हैं मैं भी निज़ा कोई हल निकाल सके। किशन सादा से लहजे में बोला तो युगल खामोश हो गया कि किशन निज़ा को इस मुसीबत से निकालने का इरादा नहीं रखता था। मित्रों, निज़ा का मुशाहिदा बहुत तेज़ था और अब वो लोग ऑफिस जाने लगते तो किशन दूसरे भाइयों को काम पर रवाना करता तो तब तक निज़ा बाप का चश्मा वाकी टाकी उठा लेता, युगल का भी चश्मा और वाकी टाकी संभाल लेता और कार्ड भी निज़ा खुद निकाल लेता। और अब अगर
निज़ा कोई चीज़ उठाना भूल जाता तो किशन युगल उसी से मांगते। निज़ा मेरे ग्लासेस किधर हैं, तो निज़ा को फ़िक्र होती। वो रूम में आते ही फ़ौरन चीज़ें निकाल लेता। इसके अलावा दोनों के वॉलेट भी उठा लेता, शूज़ भी सीधे करता। तो मित्रों, निज़ा कार्ड उठाने लगा तो रात को जब किशन ने कार्ड अंदर रखे तो फिर रात को निज़ा थकावट में ना उठा सका। अब सुबह निकाले तो देखा कार्ड तो सारे इकट्ठे पड़े थे, कुछ टेढ़े हो गए थे मगर दस्ते की सूरत थे, जबकि 3 कार्ड दराज में बिखरे थे और निज़ा जानता था कल 3 काम थे। उसने कार्ड उठा लिए और किशन भाइयों को रुखसत कर चुकता तो उससे चीज़ें ले लेता था। कार्ड लेकर किशन ने उलट पुलट किए और जेब में डाल लिए। दिन भर के बाद वो लोग पलटे तो मित्रों, निज़ा माँ की तरफ दौड़ा मगर वहाँ से अंदरूनी दरवाजे से होता सीधा बेडरूम में आया। दराज खोला तो 2 कार्ड अंदर थे। गुड, तो बापूजी कार्ड रूम में उड़ा जाते हैं। निज़ा फिर वहाँ से दौड़ता चला गया और किशन इस बात से लाइल्म रहा। सुबह निज़ा ने कार्ड उठाकर दराज पूरा बंद नहीं किया, दर्ज रख दी और चीज़ें बाप के हवाले करके वो वहीं खड़ा रहा और ज्ञानी किशन भी ना देख सका कि 2 साला निज़ा ने उसे 3 कार्ड उड़ाते देख लिया है। 3 कार्ड दराज में आ गिरे थे। निज़ा लपक कर बाप की लेग से चिमट गया तो किशन ने उठा लिया और दिन भर जल्दी निज़ा ने कार्ड पूरे कर लिए। अमेजिंग, युगल हैरत से बोले, वाकई मिरेकल ही है। अब पता ये चलाना है कि निज़ा ने ये जाना कैसे। किशन को भी हैरत थी। चालाक निज़ा ने दूसरे दिन भी कार्ड दराज से देख लिए मगर तीसरे दिन दोनों ने उसकी चोरी पकड़ ली। तो किशन ने हंसते हुए दराज से उड़ाए गए कार्ड उठा लिए और दराज जोर से बंद कर दिया। निज़ा नर्वस हो गया। 2 दिन बाद मित्रों, निज़ा दराज खोले उसी में सर दिए रहा। उसमें से उसने हर चीज़ निकाल ली थी। दराज खाली था और कार्ड उसमें फेंका जाता तो आवाज़ आती। तो मित्रों, सुबह निज़ा बेड के साथ लगकर खड़ा रहा तो किशन ने कार्ड उड़ाए। निज़ा के कान दराज की तरफ लगे थे। 1-2 बहुत मध्यम आवाज़ उस तक पहुंच गई और दिन भर वो जल्दी फारग हो गया। हैं, ये निज़ा मेरा माइंड तो नहीं पढ़ने लग गया? किशन हैरान था। आप कार्ड कैसे उड़ाते हैं? युगल ने पूछा। गायब कर देता हूँ। और निज़ा, ये तो कभी जज नहीं कर पाएगा कि गायब करने का तो पता ही नहीं चलता। और मित्रों, 4-5 दिनों बाद रूम के सन्नाटे और निज़ा के पूरे ध्यान से किशन समझ गया तो उसने निज़ा को वहाँ से हटा दिया। तो निज़ा फिर अगले दिन हार गया। दोनों भाई देर तक महजूज होकर हंसते रहे। फजर पढ़कर सब घर आए तो निज़ा का बेड खाली था। श्रीमती जी, निज़ा किधर है? किशन ने आवाज़ लगाई। वो व्यू भी ले सकता था मगर वाइफ से पूछा। गुजर दादा से मिलने गया है, क्वीन ले गई। किशन अक्सर वहाँ उसे ले जाता। आज सुबह सुबह गुजरों की याद आ गई उसे। किशन कहता आ गया कि मित्रों, कुछ देर में दोनों आ गए। निज़ा का पेट ताज़े दूध से भरा था और गुजरों ने उसे दूध से गुस्ल दिया था। किशन चूमने लग गया तो उसकी मुट्ठी में एक घुंघरू था। स्वीट हार्ट, मज का उतार के ले आए? डलनास ने पूछा। डलनास बापू गुज्जर दादा ने दिया है। तो आप क्या करेंगे इसका? डलनास ने पूछा। बस खेलेंगे, निज़ा बोला। बट निज़ा, आप जानते हैं मैं बच्चों को बड़ों से खेलने का हुक्म देता हूँ, ना कि घुंघरुओं से। किशन खफकी से बोला। सॉरी बापूजी, रात को जाकर वापस कर देंगे, निज़ा शराफत से बोला और दराज खोलकर घुंघरू उसमें रख दिया और ताश निकाल कर दराज से बाहर रख दिए। नाश्ता करके वो लोग काम पर जाने लगे कि मित्रों, निज़ा ने सारी चीज़ें उठा ली। किशन ने कार्ड उलट पुलट किए तो मित्रों, दूर खड़े निज़ा के कानों में मध्यम सी घुंघरू की आवाज़ आई तो वो अपनी मुस्कान ना रोक सका। युगल और किशन ने भी वो मध्यम आवाज़ सुन ली थी। 2 बार आवाज़ आई थी। कितने कार्ड कम है? किशन के मुंह से निकला। निज़ा 2 उंगलियां बंद कर चुका था, उसने सामने कर दी। किशन ने जाकर दराज खोला तो मित्रों, वहाँ 2 कार्ड थे और एक एक करके किशन कार्ड उड़ाता तो घुंघरू से लगने से 2 बार आवाज़ आई कि मित्रों, कार्ड दराज में गिरता। वो कार्ड घुंघरू से लगे ना लगे, घुंघरू चिकना था, लुढ़क जाता तो बज उठता। किशन ने जज्बाती होकर निज़ा को उठाकर सीने से लगा लिया। अमेजिंग, युगल हैरत अंगेज हद तक ज़हीन है, बट आपके ज़हन ने तो हैरान कर दिया। आप इस मशक से फुल पास हो गए, आज छुट्टी करते हैं। किशन ने खुशी से कहा और छुट्टी कर ली तीनों ने। तो सबसे पहले निज़ा ने जाकर गुज्जर को घुंघरू वापस किया। खोला बनाने का इरादा है? युगल ने सरगोशी की तो किशन ने हंसते हुए उसे बाजुओं में खींच लिया कि श्रीमती जी और किशन की दूसरी बीवियों के साथ हनुमानगढ़ के बड़े लोग भी निज़ा की कामयाबी पर किशन को छेड़ जाते कि अब बीकानेर खोला खरीद लें। रहन कारण हनुमानगढ़ तो हाथ से गया, जल्द ये निज़ा के कब्जे में होगा।
चंद दिनों बाद किशन और युगल निज़ा को लेकर ड्यूटी पर जाने लगे तो किशन ने श्रीमती जी से कहा, एक कच्चा अंडा दे दें। उन्होंने अंडा जीप में फ्रंट पर रैक में रखवा दिया। फांसी घाट पहुंचे तो किशन अंडा उठा लाया। फांसी घाट में सूरज की समाधि के पास किशन ने सबसे पहले बाप को सलाम किया, फिर सारी हिस्ट्री पढ़ी। वो दिन भर में कई बार आकर सारी हिस्ट्री पढ़ता था और अंडा ज़मीन पर रख दिया। निज़ा, आज आप इस अंडे पर खड़े होने की प्रैक्टिस करेंगे। 2.5 साल निज़ा के साथ साथ युगल भी हैरान रह गया। इम्पॉसिबल बापूजी, अंडे पर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? निज़ा ने फ़ौरन नफ़ी की। तो मित्रों, किशन आगे बढ़ा और एक पैर अंडे पर रख कर खड़ा हो गया। निज़ा ने घबरा कर देखा तो अंडा सलामत था और किशन उस पर खड़ा था। किशन ने पैर हटा लिया। मेरा वज़न ज़्यादा है, फिर भी देखें अंडा नहीं टूटा और ना तड़का है। आपका वज़न कम है, चलें आप इस पर खड़े हों। किशन ने अंडा उसे ठीक जांच करा के फिर ज़मीन पर रख दिया। निज़ा ने झिझकते हुए अंडे पर पैर रखा, दबाव डाला तो वो उसी वक्त टूट गया। इट्स नॉट पॉसिबल, निज़ा ने ठोस लहजे में जैसे फतवा दिया। हम खड़े हैं ना अंडे पर, फिर आप क्यों झुठला रहे हैं? किशन कुछ खफगी से बोला और गार्ड से कहा, 1 सैकड़ा अंडे निज़ा को ला दे। अब निज़ा के सामने बड़े टोकरे में 100 अंडे पड़े थे। निज़ा अंडे पर पैर रखता तो वो फौरन टूट जाता और सूरज ढले तक मशक कर करके निज़ा कामयाब ना हुआ और सारे अंडे टूट गए। घर चलें। किशन ने टूटे अंडों पर खफगी से नज़र डाली तो युगल ने निज़ा को उठा लिया। रात भर निज़ा परेशान सोते में भी कसमसाता रहा। कई दिन लगातार गुजर गए। निज़ा रोज़ 100 अंडा तोड़ देता मगर उसे कामयाबी ना हुई। ये पॉसिबल नहीं है। घर से निकलने लगे तो युगल ने भाई के हाथों को हाथों में दबाया। निज़ा ने फिर कई दिनों से ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो मशक जारी रखते हैं। किशन मुस्कुरा कर बोला, बट निज़ा बहुत अपसेट है। युगल के लहजे में हल्का सा एहतजाज था। ओके, देखते हैं वो खुद हार मानेगा। किशन कहकर उसका हाथ पकड़े जीप की तरफ बढ़ गया। फांसी घाट में पहुंचकर 100 अंडा निज़ा के सामने रखकर किशन युगल आपस में जाने लगे कि निज़ा ने रोक लिया। बापूजी, आप अंडे पर खड़े होकर फिर से दिखाएं, निज़ा ने कहा तो किशन एक अंडे पर पैर रखकर खड़ा हो गया और दूसरा पैर भी उठा लिया। अब उसका सारा वजन अंडे पर पड़ रहा था। निज़ा ने लेट कर देखा, अंडा किशन के जूते के तलवे से लगा हुआ था। युगल बापू, क्या आप अंडे पर खड़े हो सकते हैं? अचानक निज़ा बोला तो किशन के पलक के इशारे से युगल ने कहा कि वो अंडे पर खड़ा हो सकता है। निज़ा ने किशन को खड़ा रहने का कहकर एक अंडा ज़मीन पर रखा तो मित्रों, युगल उस पर आराम से खड़ा हो गया मगर निज़ा के लबों पर मुस्कान तैर गई। किशन और युगल ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। निज़ा ने युगल को हटा दिया और अंडा वापस टोकरे में रख दिया। अब हम जाएं, काम का टाइम है। किशन ने इजाज़त चाही कि फांसी घाट में वफद ठहरा हुआ था और वो भी बाहर खड़े सब देख रहे थे। कुछ देर खड़े रहे। निज़ा ने रिक्वेस्ट की और ज़मीन पर लेट कर चारों तरफ से पैर का मुआयना किया। गार्ड अंकल, ज़रा टॉर्च ला दें, निज़ा ने गार्ड से कहा। गार्ड फ़ौरन टॉर्च ले आया तो मित्रों, निज़ा ने दूसरी साइड से टॉर्च लगाई जो निज़ा के चेहरे पर पड़ती रही। निज़ा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गार्ड अंकल, आज ये 100 अंडा हम आपको दे देंगे। अंदर से एक सफ़ेद कागज़ ला दें। गार्ड फ़ौरन पेज ले आया तो मित्रों, निज़ा ने पेज पैर और अंडे के दरमियान से गुजारा तो पेज आराम से गुजर गया। निज़ा ने दोनों हाथों से एहतियात से पैर के नीचे से अंडा खिसकाया तो वो आराम से निकल आया। युगल देख रहा था, किशन ना देख पाया। निज़ा ने अंडा अपने पीछे छुपा लिया और किशन के सामने खड़ा होकर मुस्कान से बोला, इट्स माई चैलेंज बापूजी, कच्चे अंडे पर खड़ा होना नामुमकिन है। जब मैं और युगल खड़े हो सकते हैं तो आप हमारी बात की कैसे नफ़ी कर रहे हैं? किशन को गुस्सा आ गया तो निज़ा ने अंडा सामने कर दिया। आप अंडे पर कब खड़े हैं? आप तो अपने ज्ञान पर खड़े हैं, निज़ा इतरा कर बोला तो किशन ने हैरत से पैर हटाया तो नीचे अंडा नहीं था। आपको कैसे पता चला कि गवर्नर अंडे पर नहीं खड़े? मेहमानों ने हैरत से 2 साल निज़ा से पूछा। निज़ा मुस्कुराया और बोला, जब हमारे कहने पर युगल बापू अंडे पर खड़े हुए तो अंडा साकत रहा, हिला नहीं। बापूजी भी खड़े हुए तो अंडा साकत रहा। तो हम समझ गए ये नज़र का धोखा है। बापूजी ज्ञान यूज़ कर रहे हैं। और किशन बेटे के इतने गहरे मुशाहिदे पर खुद भी हैरान हुआ।